ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 2.5-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੜਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਬੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਤੀਮ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ। किसी को इंसाफ दिए बगैर अगर कोई दिन दहाड़े किसी को खुलेआम सड़क पे कत्ल करके चला जाता है, उसको माफ़ कर दिया जाता है, तो ये फिर उन लोगों को खुली शय होगी कि वो इस तरह के कई इमरान मज़ीद कत्ल कर सकें। ये चीज़ हुकूमत को सोचनी चाहिए कि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। भत्ताखोर माफिया ने मुबैना तौर पर एक माँ के लगते जिगर को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। मामला सिर्फ ये था कि वो शख्स ये चाहता था कि उनकी अपने जो घर के सामने या मार्केट के सामने जो कब्ज़ा करके वो लोग बैठे हैं और वो भत्ता लोगों से मांगते हैं और सारे मामलात ख़राब करते हैं, रास्ता रोक के बैठे हैं, सिर्फ वो शख्स यही चाहता था कि यहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पर रास्ते रोके हुए हैं तो वो ना हो। बहरहाल बात यहाँ तक पहुँच गई कि उन जालिमों ने बड़ी बेरहमी से उस शख्स को ख़त्म कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 46-47 साल एज थी, इमरान उनका नाम था, उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं जिनको नाहक कत्ल किया गया। सब तो पहला माँ जी सानू बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला तुहानू सबर देवे, हिम्मत देवे। कहना सौखा है, मावां नू सबर नहीं आउंदा, अपनियां नू सबर नहीं आउंदा। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 2.5-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਲੋਕੀ। ਹਾਂ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਖੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਦਮਾਸ਼ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। अल्लाह ताला जी। ये जी वालदा बता रही हैं कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, ये भत्ताखोर माफिया है, ये कब्ज़े करते हैं। इससे आज से कुछ अर्सा पहले कानूनी तो कार्रवाई करवाई थी इनके बेटे ने, और उसके बाद फिर दोबारा कोई मसला बना तो अचानक उन्होंने इतना बड़ा जुल्म कर दिया। और इनकी भी यही अपील है और हमारी भी यही अपील है अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि इस माँ के एक एक आंसू का हिसाब लेना है। हमारी गुजारिश है मरीम नवाज़ साहिबा से, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से कि इस माँ के लगते जिगर को जिस बेरहमी से कत्ल किया गया, मारा गया है, मासूम बच्चे हैं उस शख्स के, और वो कहते हैं ना कि माँ, ये अक्सर कहते हैं कि सब्र कहना आसान है, आता नहीं है कभी भी। ਜਵਾਨ ਬੀਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਇੱਕ 12ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ 13ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਐਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਯਤੀਮ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੀ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਬੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ? ਕਿਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾ ਕੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੱਪ ਤੇ ਬਲੇਟਾਂ ਛਲੇਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਫਲਾਈ ਕੰਮ। ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ? ਚਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦਮ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਏ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਲੱਗੀ ਸਰ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਸਾਂ, ਆਏ ਨੇ
ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ 4-5 ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਫਟਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਏਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ये जी जो माँ जी बता रही हैं, जो मामलात हैं, यकीन मानिए कि ये लोगों के बारे में हमें पता चला है इस इलाके में पहुंच के। मुबैना तौर पर इन लोगों के खिलाफ पहले भी बहुत सारे ऐसे जो हैं FIRs हैं और उनमें पहले भी लोगों को इसी तरह नुकसान पहुंचाते रहे हैं। मुबैना तौर पर ये चीज़ सामने है कि ये लोग पहले भी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते रहे हैं, लेकिन इस बार तो उन लोगों ने हद कर दी। यानी कि एक माँ बता रही हैं कि इनके बेटे को कितनी बेरहमी से उन जालिमों ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, और कह रही हैं कि बच्चे जो हैं पोते पोतियां उनकी आगे उनकी ज़िंदगी देखना, सारे मामला नहीं देख पाया उनका बेटा। इनकी बहू जो है उनको बेवा कर दिया गया। अल्लाह ताला उस बहन को भी हिम्मत दे, सब्र दे। लेकिन एक जो सब्र थोड़ा सा जो तब आता है मजलूमों को जब इंसाफ फौरी तौर पर उनको मिले। तो हम यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से, आज़म पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, ये माँ जी जिनके लफ्ज़ जिगर को बेरहमी से कत्ल किया गया है, इनको फौरी तौर पर इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, पता चल जाता है कि वाकई वो जो दूसरे जो मुल्ज़मान हैं उनका साबिक़ा रिकॉर्ड भी मौजूद है, तो फिर ये भी तहकीक और तफ्तीश होनी चाहिए कि अगर साबिक़ा रिकॉर्ड ऐसा था भत्ताखोरी का, बदमाशी का, लोगों को डराना धमकाना, कब्ज़ा माफिया का, अगर तो ये भी तफ्तीश होनी चाहिए कि उनके खिलाफ पहले क्यों सख्त कार्रवाई नहीं की गई। मुआशरे में ये मामला तब ख़राब होते हैं जब इन मामलात को पहले से कंट्रोल नहीं किया जाता, और इस हद तक वो लोग चले गए कि उन्होंने एक माँ के बेटे को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। माँ जी तुसी साडे प्रोग्राम के जरिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा नूं तुसी की कहना चाहोगे? ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ये थी बड़ी सादा सी और बड़ी मासूमियत से और बड़े दुख दर्द के साथ माँ जी ने अपील की है कि जी इनको इंसाफ चाहिए, इनके बेटे को नाहक कत्ल किया गया है, और इस केस को मज़ीद लंबा करने की बजाय फौरी तौर पर तफ्तीश जो मेरिट पर हो, और उस तफ्तीश के मुताबिक, कानून के मुताबिक इन जालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि कभी भी कोई किसी के माँ के लफ्ज़ जिगर को इतनी बेरहमी से कत्ल ना करे या उसको नुकसान ना पहुँचाए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं इमरान के जो उनके बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियाँ। वो कहते हैं ना, वालिद का साया जो है तमाम बच्चों के लिए, तमाम औलाद के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और यहाँ पर इमरान जो कि लोगों के लिए हक की आवाज़ उठाते थे, लोगों के लिए उनकी मदद करते थे हमेशा, उनको नाहक मार देने वाले जो लोग हैं उनको जो है कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए सब अपील कर रहे हैं। और आज हम भी यहाँ पर मौजूद हैं इस ख़ानदान के साथ, उनके दुख में हम इनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचा रहे हैं। बात करते हैं। सबसे पहले बेटा बहुत अफसोस है हमें, अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे, सब्र दे। देखें, पाकिस्तान में अगर किसी को इंसाफ दिए बगैर अगर कोई दिन दहाड़े किसी को खुलेआम सड़क पे कत्ल करके चला जाता है, उसको माफ़ कर दिया जाता है, तो ये फिर उन लोगों को खुली शय होगी कि वो इस तरह के कई इमरान मज़ीद कत्ल कर सकें। अगर उन लोगों को जो है वो इसी तरह छोड़ दिया जाएगा या बाबा को इंसाफ नहीं दिया जाएगा ना, तो ये उन लोगों को फिर खुली शय है कि वो किसी को भी किसी भी तरह किसी भी जगह पर खुलेआम रोड पर कत्ल करके चले जाया करेंगे। तो ये चीज़ हुकूमत को सोचनी चाहिए कि अगर आगे से मज़ीद इमरान बचाने हैं ना, तो इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। वालिद की एक होता है ना कि एक अपनी बेटियों से, बेटों से होता है कि बेटा आप ये बनना है, डिस्कशन होती है, तो क्या चाहते थे आपके वालिद, आप तीनों 4 बच्चों से? बाबा हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते थे और इंशाल्लाह हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा भी करेंगे। एक बाप अपने बच्चों से और बच्चे अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो हमारे साथ हुआ है, उनको इंसाफ मिलने से हमारे बाबा वापस नहीं आएंगे, लेकिन हमारे दिल को कुछ हद तक सुकून मिल जाएगा कि जिस अज़ियत से वो गुज़रे हैं ना, उस अज़ियत का हिसाब ले लिया गया है। और मज़ीद ऐसे कई घर बचा लिए गए हैं जहाँ पर मज़ीद ऐसे सानहे वो लोग कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे बाबा को इंसाफ मिलना सिर्फ हमारे बाबा का इंसाफ नहीं होगा, बल्कि ऐसे मज़ीद बहुत से लोगों को जो है वो हौसला मिलेगा, तसल्ली मिलेगी, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा।
بالکل صحیح ہے بیٹا. یہ بڑی پیاری بات کی اس بیٹی نے کہ جی ان کے والد کا نام عمران تھا جن کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا. یہ یہی چاہ رہے ہیں بچے بھی, ان کی والدہ, ان کے بھائی بھی, کہ اگر ان کو انصاف نہ دیا گیا تو پھر یہ اور مزید کتنے گھر اجاڑیں گے اس کا حساب جو ہے کوئی نہیں لگا سکتا. تو یہی اس بچی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ان لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے تاکہ وہ ظالم جو ہے ان کے ظلم کو روکا جا سکے. بیٹا اس وقت مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان سے آج پنجاب سے, ان سے آپ ڈائریکٹلی بیٹا اپیل کر سکتی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ میری ان سے یہی اپیل ہے کہ وہ خود ایک بیٹی ہیں, ان کا اپنے باپ سے جو رشتہ ہوگا وہ بہتر محسوس کر سکتی ہیں, تو وہ میرے درد کو بھی کچھ حد تک محسوس کر سکتی ہوں گی جس درد سے میں اس وقت گزر رہی ہوں. تو میری ان سے یہی اپیل ہے کہ میرے بابا کو انصاف دیا جائے اور ان سے اسی طرح بدلہ لیا جائے جس طرح انہوں نے میرے بابا کو اذیت میں مبتلا کیا تھا.